This is our third lecture on the chapter Consumer Equilibrium Utility Approach. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अगर कंज्यूमर वन कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, आई रिपीट, जब कंज्यूमर एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आता है। कल हमने ये पॉइंट किया था। अब उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 20, what happens when MUX is not equal to PX? अगर MUX PX के इक्वल ना हो तो कंज्यूमर किस तरीके से अपना रिएक्शन देता है। What is the reaction it shows? He shows or she shows. इसके अंदर दो केसेस हैं। केस 1 इज व्हेन MUX इज ग्रेटर देन PX, केस 2 इज व्हेन MUX इज लेस देन PX। तो पहले एक्सप्लेनेशन दीजिए। व्हाट हैपन्स व्हेन MUX इज नॉट इक्वल टू PX। वी हैव 2 पेजेस, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है इसको जो हमने एक्सप्लेन करना है। पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर केस 1 एक्सप्लेन करेंगे, फिर केस 2 एक्सप्लेन करेंगे। लिखिए, when a consumer is at certain level of consumption, when a consumer is at certain level of consumption, comma, where MUX is not equal to PX, where MUX is not equal to PX, then consumer is not at the point of rest. Then consumer is not at the point of rest. Full stop. He, मैं कंज्यूमर को बॉय कंसिडर कर रहा हूं, he has to change his level of consumption. He has to change his level of consumption in a way that such that MUX equates PX. MUX equates PX. Full stop. Case 1. MUX is greater than PX. MUX is greater than PX. इस पॉइंट पे क्या होगा, हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो ज़्यादा है और जो हम सेटिस्फेक्शन लूज कर रहे हैं वो कम है क्योंकि प्राइस हम पे कर रहे हैं। तो वी आर एट अ सरप्लस सिचुएशन, वी शुड कंज्यूम मोर। केस 2, MUX is less than PX. MUX is less than PX. Write down the explanation. Case 1 की explanation. Case 1, when MUX is greater than PX.
राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। ये दोनों केसेस हमें 2 पेजेस में एक्सप्लेन करने हैं, सो उस तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा। इफ MUX इज ग्रेटर देन PX, if MUX is greater than PX, comma, then consumer is not at equilibrium, then consumer is not at equilibrium, and he goes on buying, and he goes on buying because benefit derived from the consumption of a unit, from the consumption of the commodity is greater than the cost, paid for purchasing that commodity। इस लाइन का मतलब है अगर कंज्यूमर यहाँ पर है तो उसको कंजम्पशन से जो बेनिफिट मिल रहा है वो ज़्यादा है और जितने पैसे वो खर्च कर रहा है वो कम है, तो उसे कंजम्पशन को और बढ़ाना चाहिए। फुल स्टॉप। Therefore, a rational consumer should buy more of that commodity. Therefore, comma, a rational consumer should buy more of that commodity. Full stop। कब तक परचेज करेगा वो? और इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए MUX इज ग्रेटर देन PX, ये 10 है, ये 6 है, एक यूनिट और कंज्यूम करेगा 96 क्योंकि प्राइस तो सेम रहेगा, एक और यूनिट कंज्यूम करेगा 86, एक और यूनिट कंज्यूम करेगा 76, एक और यूनिट कंज्यूम करेगा 66 और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। As he buys more, he buys more, MU falls because of the application of law of DMU. MU falls because of the application of law of DMU. Full stop। DMU is diminishing marginal utility। A consumer should consume more of commodity X. Consumer should consume more of commodity X या more of the commodity till MUX equates PX, MUX equates PX, that is maximum benefit is availed, that is maximum benefit is availed।
and he will be at equilibrium, and consumer will be at equilibrium. Full stop. Following diagram will explain this point more clearly. Following diagram will explain this point more clearly. इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। कंज्यूमर यहाँ पर है OQ0 यूनिट पे, कंज्यूमर 5 गोलगप्पे कंज्यूम कर रहे हैं। प्राइस है OA, प्राइस A पे शो किया गया है, MUX B पे शो की गई है। MUX is B, price is A, which is above. B is greater, that is MUX is greater. तो कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन बढ़ाएगा जिससे टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी और वो अपनी कंजम्पशन OQ तक बढ़ाएगा। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्ट्रक करेगा। राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए। अभी हम केस 1 पर हैं। ये डायग्राम ड्रॉ कीजिए। विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन देन। When consumer is consuming OQ0 unit of a commodity, when consumer is consuming OQ0 unit of a commodity, OQ0 unit of a commodity, comma, MUX is greater than PX. MUX is greater than PX. Which is shown by AB. Which is shown by AB. As the benefit availed is greater than the cost paid, as the benefit availed is greater than the cost paid, comma, a rational consumer should consume more of a commodity. A rational consumer should consume more of that commodity. Full stop. By doing this, comma, total utility will be increased by sigma mu. sigma mu मतलब एरिया अंडर द कर्व, ये TU आ गया। टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करेगी। बाय डूइंग दिस, कॉमा, टोटल सेटिस्फेक्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय AEB, this triangle, AEB, full stop. Consumer should stop at point E because it is the point of equilibrium. Consumer should stop at point E because it is the point of equilibrium.
where MUX is equal to PX, where MUX is equal to PX, full stop. He should consume OQ unit of a commodity to attain maximum satisfaction. Consumer should consume OQ unit of a commodity to attain maximum satisfaction. अब केस 2 बिल्कुल इससे रिवर्स रहेगा. केस 2 विल बी रिवर्स्ड. लिखिए केस 2, when MUX is less than PX, when MUX is less than PX, write down. क्या होगा जब ये, इसका मतलब क्या, प्राइस ज़्यादा, आप प्राइस ज़्यादा पे कर रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है, तो क्या आपको वो चीज़ खरीदनी चाहिए? एक रैशनल कंज्यूमर वो चीज़ नहीं खरीदेगा, क्योंकि वो प्राइस पे कर रहा है ज़्यादा और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो मिल रही है कम. तो अगर कंज्यूमर ऐसे किसी पॉइंट पे है तो उसे अपनी सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी. दैट मीन्स पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे. Write down the explanation. If MUX is less than PX, comma, if MUX is less than PX, comma, then consumer is not at equilibrium. Then consumer is not at equilibrium. And he should decrease his level of consumption. He should decrease his level of consumption. पहले तो रैशनल कंज्यूमर वहाँ पे जाएगा ही नहीं, पहले ही रुक जाएगा. बट अगर कोई रैशनल कंज्यूमर जा रहा है तो वो अपनी कंजम्पशन को कम करने की ट्राई करेगा. फुल स्टॉप. इट इज सो बिकॉज, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज सो बिकॉज बेनिफिट डिराइव्ड बाय कंज्यूमिंग additional unit, benefit derived by consuming additional unit is less than the cost, is less than the cost paid to purchase that commodity, paid to purchase that commodity. Full stop. As he buys less, as he buys less, MU will increase. नेगेटिव रिलेशन होता है ना, कंजम्पशन बढ़ेगी तो MU कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो MU बढ़ जाएगी. As he buys less of the commodity, MU rises. MU rises because of the application of law of DMU. Because of the application of law of DMU. Full stop. The rational consumer should consume less.
rational consumer should consume less till he reaches MUX is equal to PX, till he reaches MUX is equal to PX, that is the point of equilibrium, the point of equilibrium, full stop. Following diagram will explain this point more clearly. Following diagram will explain this point more clearly. आई नो बुक्स के अंदर तो डायग्राम्स बने हुए हैं, पेपर में अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस हो जाती है डायग्राम बनाने की। देखिए कंज्यूमर यहां पर है OQ1, कंज्यूमर इट हैज OQ1, व्हाट इज ग्रेटर PX, मतलब वो प्राइस ज़्यादा पे कर रहा है तो उसे अपनी कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। कंजम्पशन कम करेगा तो MU बढ़ेगी और ये पैसे उसके बच जाएंगे। ये जो डायग्राम बना है उसके अंदर आप देख सकते हैं, जो पहला केस था, ये जो एरिया अंडर द कर्व थी वो अपर रीजन थी। अपर रीजन मतलब उसका TU बढ़ रहा है, अब ये डाउन है, मतलब MU नेगेटिव उस केस में जा रही थी, तो हमें कॉस्ट, हमारे पैसे बचेंगे जो हमारे सरप्लस बेनिफिट पे करेगा। ड्रॉ दिस डायग्राम सो दैट वी कैन एक्सप्लेन इट देन। बनाइए डायग्राम सो दैट वी कैन गिव द एक्सप्लेनेशन। Write down the explanation now. At OQ1, PX is greater than MUX. PX is greater than MUX. Shown by AB, full stop. It means price paid to purchase the commodity, price paid to purchase the commodity is greater than the benefit availed from that commodity. Benefit ब्रैकेट में satisfaction, benefit ब्रैकेट में satisfaction availed from that commodity, full stop. Thus, comma, a rational consumer, thus, comma, a rational consumer should consume less
rational consumer should consume less till OQ unit of consumption, till OQ unit of consumption where MUX is equal to PX, MUX equal PX. Full stop. Point E is the point of equilibrium. Point E is the point of equilibrium, that is the point of rest. Point of equilibrium, that is the point of rest. Full stop. By decreasing the consumption from OQ1 to OQ, by decreasing the consumption from OQ1 to OQ, comma, the consumer will be benefited by AEB utils. AEB utils इतना बेनिफिट मिलेगा उसको, नॉट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मनी. जो पैसे बचेंगे वो बेनिफिट उसको मिलेगा. AEB utils, MUM केस में. This is your one commodity case. Definition: consumer is said to be at equilibrium when he gets the maximum level of satisfaction within the limited level of income on two or more goods. Condition: two cases, one commodity case, two commodity case. One commodity case, MUX is equal to PX. If they are not equal to each other, what will happen? Greater and less. और MUX by PX is equal to MUM. अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे? How questions will be asked in the exam? Let's start with the questions of one commodity case. We'll start with 6 marker questions. Question number 21. Question number 21. Given price of a good, how does a consumer decide as to how much of that good to buy? Explain. Given price of a good, please underline a good. एक कॉमोडिटी का प्राइस गिवन है, कंज्यूमर कैसे डिसाइड करेगा कि कितना खरीदा जाए? 6 मार्कर क्वेश्चन, आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कॉमोडिटी केस एक्सप्लेन करना है. आंसर नंबर 21. मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, आपको सिर्फ बता रहा हूं पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है. 6 मार्कर है, तो पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन. Consumer is said to be at equilibrium when he gets the maximum level of satisfaction within the limited income on one or two more goods. One commodity case, when the price of the commodity is given, he will attain the equilibrium when MUX is equal to PX. Condition: MUX is equal to PX. Explain शेड्यूल डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन. ये जब आप कंडीशन एक्सप्लेन करेंगे, इसमें आप ग्रेटर और लेस दोनों एक्सप्लेन करेंगे, बट ब्रीफ में. without diagram like this.
when MUX is greater than that, he will consume more. If MUX is less than PX, he will consume less. That's it. Just in statement form. आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा. क्वेश्चन में कंडीशंस एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला है, क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप. शेड्यूल डायग्राम दोनों एक्सप्लेन करने हैं, 6 मार्कर है क्योंकि. दिस इज हाउ you will attempt 21st question. 2019 2 commodity case, 17 2 commodity. Question number 13th. Question number 13th. What happens when MUX is not equal to PX? Answer 13. जब MUX PX के इक्वल नहीं होता तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं होता. फिर इसके दो केसेस बनाएंगे. केस 1 MUX ग्रेटर देन PX. फिर केस 2 MUX इज लेस देन PX. क्योंकि 4 मार्कर है तो डायग्राम जरूरी है. दोनों एक ही डायग्राम में बना सकते हो. कैन एक्सप्लेन इन वन डायग्राम. दो अलग अलग बनाएंगे तब भी ठीक है. इससे ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो जाएगी. मतलब आपका टाइम ज़्यादा लगेगा तो बाद में पेपर कंप्लीट नहीं होगा, जिस वजह से आपका पेपर में मार्क्स कम रहेंगे. दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज. आप पहले ही 4 मार्कर है, स्पीड बढ़ाने की बजाय उतना लिखो जितना ज़रूरी है. तो ज़रूरी नहीं है दो अलग अलग डायग्राम बनाओ, एक ही डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दो. इस क्वेश्चन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं पूछा. क्वेश्चन 13 में लिखे व्हाट हैपन्स व्हेन MUX इज नॉट इक्वल टू PX. तो आपका फोकस रहेगा इसे एक्सप्लेन करने का, ना कि इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करें. क्वेश्चन नंबर 9th. Question number 9. Starting from the point of consumer equilibrium, suppose MU of a rupee increases. Consumer equilibrium पे है, MU of a rupee, MUM increase कर गया. Tell how it is going to make impact on QD. Quantity demand पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? Answer number 9th. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, मतलब MUX PX के इक्वल है, मतलब MUX अपॉन PX MUM के इक्वल है. हम इसमें MUM इसलिए एक्सप्लेन करें क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है MUM ऑफ अ रुपी, MU ऑफ अ रुपी इंक्रीजेस, मतलब MUM इंक्रीज कर रहा है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, MU ऑफ अ रुपी इंक्रीजेस, मतलब MUM इंक्रीज कर गया. कंज्यूमर यहां पर है. अब MUM इंक्रीज कर गया, MUM बढ़ गया, रुपए की वैल्यू बढ़ गई, तो कंज्यूमर पहुंच जाएगा यहां पर. ये बढ़ गया ना, ये छोटा हो गया. तो अब कंज्यूमर को क्या करना चाहिए इक्विलिब्रियम पे आने के लिए? कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस. कंज्यूमर कम कंज्यूम करेगा क्योंकि MUX है. कंज्यूमर कम कंज्यूम करेगा, MU बढ़ जाएगा. ये कुछ ऐसा हुआ, मेरी जेब में 1000 रुपीज़ थे, मैंने 500 की 2 टी शर्ट्स खरीदनी थी. I have 1000 in my pocket and I want to spend 1000. I want to purchase 2 t-shirts 500 each. मैं सोचा हुआ है कि 500 की 2 टी शर्ट खरीदनी है. पसंद की, पेमेंट करने का टाइम आया, मुझे अचानक से घर से फ़ोन आता है कि आती बार जब आप घर पे वापस आएंगे
तो एक बुक लेके आनी है बेटे के लिए, बहुत ज़रूरी है, और वो बुक 500 की है। मेरा MUM इंक्रीज कर गया, मेरी मनी की वैल्यू इंक्रीज कर गई, वो 500 की वैल्यू बढ़ गई। अब मैं यहां आ गया, व्हाट आई विल डू, मैं एक टी शर्ट कम खरीदूंगा। इसके बाद कंज्यूमर विल परचेज या कंज्यूम लेस, इधर आ जाएगा, कंज्यूमर विल परचेज कंज्यूम लेस, कम कंजम्पशन की जाएगी। जब कंजम्पशन कम की जाएगी ड्यू टू लॉ ऑफ DMU, कंजम्पशन कम, MU ज्यादा, फिर एक टी शर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि उससे मुझे अब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मैं वो टी शर्ट खरीदूंगा जो मुझे दोनों में से बेटर फील होगी। और MUX बाय PX इज इक्वल टू MUM। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी विल बी लेस डिमांडेड। 2 टी शर्ट की वजह से अब मैं in lieu of 2 t-shirts I will purchase 1 t-shirt, less demanded. Question number 8. Question number 8. It's a numerical of one commodity case. If consumer's MUM is 2 utils, consumer की MUM marginal utility of money 2 utils है, 1 नहीं है, given है 2, and the PX is ₹5. PX is equal to ₹5, MUM is equal to 2 utils. अगर MUM क्वेश्चन में ना गिवन हो तो वो 1 होती है। कंप्यूट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग द फॉलोइंग शेड्यूल। यूनिट्स 1 2 3 4 5 6, ये हम 6 ले लेते हैं पूरीज और स्मॉल चपातीस, और 6 आप क्या खा सकते हैं, 5 रुपीज़ की। लेटेड भी दीज आर टॉफीज, 6 टॉफीज हैं, 5 रुपए की एक टॉफी है और 1 रुपए की सेटिस्फेक्शन 2 यूटिल्स है। MUM MUX क्वेश्चन में गिवन है 20 16 14 10 8 4। इक्विलिब्रियम कब आता है, व्हेन MUX इज इक्वल टू MUX इज इक्वल टू PX, व्हेन MUM इज 1। इस क्वेश्चन में MUM 1 नहीं है, सो MUX by PX 20/5 4, 16/5 3.2, 14/5 2.8, 10/5 2, 8/5 1.6, 4/5 0.8। MUM 2 किस पॉइंट पे MUX by PX MUM के इक्वल आ रहा है, here। सो 3 मार्क क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल, ये नहीं ऐसे छोड़ देना, ये मैथ्स नहीं आंसर आ गया छोड़ दिया, इकोनॉमिक्स है, आपको उसके हिसाब से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कंज्यूमर will be at equilibrium when MUX by PX is equal to MUM. As per question, consumer will get
maximum satisfaction, that is at the point of rest, bracket में equilibrium, when he consumes 4 units of the commodity. जब वो 4 यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। इट इज सो बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ कंजम्पशन MUX by PX is equal to MUM is equal to 2 यूटिल्स। और अगर इस क्वेश्चन में MUM ना गिवन होती तो वो 1 लेते। 1 मतलब इसके बीच में इक्विलिब्रियम आता, 5 और 6 के बीच में। बट +1 में क्वेश्चन इस तरीके से बन के आता है कि आपको सीधा पता लग जाए 5 आंसर है या 6 है, जैसे यहाँ 2 आ गया। अगर MUM 3 होती तो इसके बीच में इक्विलिब्रियम आता, 1 से ज़्यादा 2 से कम। But now it is 2, the 4 units will be consumed. Now we will wind up one commodity case. Tomorrow we'll do 2 commodity case. One commodity case complete करने के लिए I want you to come back to page number 19. Page 19 पे वापस आइए। यहाँ पे आपने कर्व बनाई हुई है, चेक कीजिए। MUX is equal to PX। पेज 19 पे जो आपने कर्व बनाई हुई है, आप सभी चेक करें। वो कर्व ये है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यही है ना? यहाँ पे यूनिट्स कंज्यूम, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड प्राइस। हमने MUM नहीं बनाया। अब यहाँ पर आप एक और डायग्राम बनाएंगे। हेयर आप एक और डायग्राम बनाएंगे। वो डायग्राम मैं इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कई टीचर्स इसकी बजाय वो डायग्राम बनवाते हैं, कई बुक्स में इसकी बजाय वो डायग्राम है। दोनों ठीक है, मैं प्रेफर करूंगा आप ये बनाएं, बट अगर आप वो भी डायग्राम बनाएंगे तो गलत नहीं है, मार्क्स उसके कटेंगे नहीं। अगर आप डायग्राम में MUM शो करना, हमने MUM शो नहीं किया, अगर आप MUM शो करना चाहते हैं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। सिर्फ डायग्राम बनाइए। दिस इज MUX by PX and this is MUM. This is MUX by PX, this is MUM. इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ रहा है OQ, यहाँ पे यूनिट्स कंज्यूम्ड और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड marginal utility of commodity by price। by price मतलब divided by price। सी डायग्राम बिल्कुल देखने में सेम है, प्लीज चेक कीजिए, डायग्राम देखने में सेम है। इसमें हमने MUX इज इक्वल टू PX शो किया क्योंकि MUM 1 है तो MUM को इग्नोर कर दिया, और इसमें हमने MUX by PX शो किया, MUM भी शो किया क्योंकि एक्चुअल में कंडीशन क्या होती है, MUX by PX is equal to MUM, बट MUM ना गिवन हो तो MUX is equal to PX। कई बुक्स में ये कंडीशन एक्सप्लेन की गई है, कई बुक्स में ये कंडीशन एक्सप्लेन की गई है। हमने दोनों कंडीशन एक्सप्लेन किए और दोनों डायग्राम बनाए हैं, बात वही है। नॉलेज होनी चाहिए, अटेम्प्ट जिस मर्जी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है MUX is equal to PX, तो यहाँ पर इसके सामने ऊपर हेडिंग दे दीजिए ऑल्टरनेटिव डायग्राम, ऊपर हेडिंग दे दीजिए ऑल्टरनेट डायग्राम।
is the point of equilibrium where MUX by PX is equal to MUM. ये बना दीजिए. We are done with today's lecture. We need 2 more lectures approximately. 2 lecture अभी और चाहिए और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. Tomorrow we'll do lecture number 4, consumer equilibrium, utility approach to commodity case. आप पिज़्ज़ा के साथ कोक या कोक के साथ फ्रेंच फ्राइज कंज्यूम कर रहे हैं, at what point you will say I am done, stop it. Thank you very much, bye bye.